तो नोट करिए, लास्ट हमने वेस्टर्न सेल डिस्कस किया था, अब नोट करो। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स Poggendorff compensation theory भाई जल्दी ऐड हो, अब बार बार जो है इसको डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा इधर। Poggendorff compensation theory has been used to measure cell potential. According to this theory, if cell potential of cell is equal to potential developed by other cell ब्रैकेट में नोट करो, स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल ब्रैकेट क्लोज is directed to opposite direction then no current will flow through the circuit. In this condition, the potential difference between the potential difference between two electrodes is called electromotive force of that cell. Potentiometer is used to measure this potential. देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है अपने पास सेल पोटेंशियल, एग्जाम में आता नहीं है, ना आएगा, बट इसमें कंप्लीट पोटेंशियोमीटर तो आने से रहा, क्योंकि फिजिक्स में तुम्हारे पोटेंशियोमीटर तो वहीं से आएगा तुम्हारे, और सिलेबस डिलीट होगा तो हो सकता है इस टॉपिक को भी डिलीट कर दे, बट अभी तक अपने पास जो न्यू सिलेबस नहीं आया है तब तक अपने को इसको कंप्लीट करना ही करना है।
तो देखो ये जो अपने पास सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर क्वेश्चन जो आएगा वो छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा अपने पास। कैसे आएगा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न सेल, गिव्स द रिएक्शंस ऑफ वेस्टर्न सेल, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पॉगेंड्रॉफ कंपनसेशन थ्योरी, ठीक है ना, व्हाट इज पॉगेंड्रॉफ कंपनसेशन थ्योरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर, एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट तो अपने पास बुक में गिवन है, इसलिए अपन इसको रीड कर रहे हैं, बाकी इसका कोई मीन्स नहीं है ये थ्योरी का, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर डिटेल के अंदर हमारे पास किसमें है? फिजिक्स के अंदर है, और फिजिक्स में ही पोटेंशियोमीटर यूज में आता है। अपने पास तो केवल दिया हुआ है, इसलिए अपन इसको एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। ओके, तो आप लाइन चलिए नोट करो। स्ट्रक्चर AB is AB, this point is A and this point is B. AB is 1 meter long wire of 1 meter long wire of platinum iridium alloy of same cross section which is stretched on meter scale। ये मीटर स्केल है, यहाँ नंबर्स लिखे हुए अपना रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, मीटर स्केल। In this, the platinum iridium alloy is used. In this, the platinum iridium alloy is used due to following properties. First, it is hard metal due to which cross section is constant, by rubbing with contact key, तुमने देखा होगा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के अंदर जो की होता है, कांटेक्ट की होता है, उसको इसके ऊपर वायर के ऊपर चलाते हुए लेके चलते हैं अपन। सेकेंड, इट्स रेजिस्टेंस इज हाई, which makes convenient in balance of potential. C, ये है C is a lead storage cell of constant electromotive force whose electromotive force is more than EMF of cell X
more than EMF of cell X is unknown cell whose EMF is determined by which a cell can be taken in circuit. तो जो अननोन सेल है उसको लेड स्टोर सेल के अपोजिट अपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं. लाइन चेंज करें, नोट करो. EMF of C distributed equal on complete AB wire on establishing circuit. So the potential difference remains constant from A to B. Now unknown cell X is taken in circuit which opposes the EMF of C because both of these are working in opposite direction. The D position of zero deviation in galvanometer G is obtained by moving contact key on AB wire. At this position, the potential difference of C cell will equivalent to total potential of unknown cell X.
unknown cell X. So the potential Ex, so the potential Ex of X cell directly proportional to AD length of wire. Directly proportional to AD length of wire. AD length of wire. Now standard Western cell. Standard Western cell S taken in circuit. And for this cell zero deviation position. And for this cell zero deviation position is D dash. So potential ES of Western cell proportional to AD dash length of wire. So Ex upon Es equals to AD upon AD dash equals to L1 upon L2. Then Ex equals to L1 upon L2 multiply Es. ठीक है, तो देखो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम दिया हुआ है। ये ए बी अपने पास प्लेटिनम इरिडियम मेटल का एलॉय मेटल जो उसका वायर है उसको अपन ने मीटर स्केल के साथ स्ट्रेच करके कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर लेड स्टोरेज सेल लगा दिया है सी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में पहले अपन ने क्या किया, अननोन सेल एक्स को लगा दिया। ठीक है, अननोन सेल एक्स को कनेक्ट किया है। जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसका इक्वल वोल्टेज है किस पे, इस वायर के ऊपर। अब अपन ने क्या किया, जब अननोन सेल को कनेक्ट कर दिया तो अपन कांटेक्ट की को इस वायर के ऊपर चलाते हैं। तो गैल्वेमीटर के अंदर नीडल जो है वो लेफ्ट राइट होना स्टार्ट हो जाता है और जिस पॉइंट पे गैल्वेमीटर का नीडल जो है वो 0 पॉइंट पे आ जाए उस डिस्टेंस को अपन नोट कर लेते हैं। क्योंकि ये डिस्टेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगे हुए हैं। इट मींस इस डिस्टेंस पे जो अननोन सेल है उसका पोटेंशियल जो है वो नॉन सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो रहा है। ठीक है, यानी उस केस के अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो वो जो डिस्टेंस है वो हम नोट कर लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है वो अननोन सेल के पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। ऐसे भी अपन ने क्यों, क्योंकि इस वायर पे इक्वल पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, इसलिए अपन यहाँ लेंथ को जो है पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल मान रहे हैं। फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, वेस्टर्न सेल को लगा दिया, वेस्टर्न सेल के लिए डी डैश लेंथ आ गई अपने पास। इन दोनों का रेशियो निकाल दिया। ES वेस्टर्न सेल है, इसका सेल पोटेंशियल पता ही है अपने को कितना होता है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड है और जो लेंथ है वो अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो रेशियो निकाल के अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो अननोन सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास वेस्टर्न सेल EMF ऑफ सेल जो है वो कंप्लीट।